So this is the first question that as I said, has been picked up directly from JEE Advanced question paper. The question says that an infinitely long uniform line charge distribution, distribution of charge per unit length lambda lies parallel to the y-axis in the yz plane at z is equal to root 3 by a. So there is a surface drawn here, as you can see. This is x-axis, this is x-axis, this is y-axis. The surface ABCD lies in the xy plane, and then this is z-axis. So parallel to this xy plane, there is a line which intersects the z-axis at z is equal to root 3 by 2a. That means ABCD is a piece of paper like this. Imagine it like this, and then there is a line running like this. This infinitely long line charge has lambda coulomb charge per meter length on it, right? Then the question says, if the magnitude of the flux of the electric field through the rectangular surface ABCD is lambda L by n epsilon naught, then value of n. Basically the question is asking if this is line charge of infinite length, and below this line charge at a depth of root 3 by 2a, and there is a surface, rectangular surface having side length a and L, then what will be flux of electric field through this rectangular surface? That is the whole question, right? We can solve this question by way of direct integration. That is one thing that one can do. And then if you understand that electric flux through a surface is basically count of number of field lines passing through that surface, and you can do some imaginative thinking, you can very easily solve this question. So what can be done? Let us look at it. आप में से जो लोग अभी तक ट्राई नहीं किया या भूल गए हैं, लगता है फिर से ट्राई करना चाहिए, कर लीजिए ना, रुक के ट्राई कीजिए. So this is the same diagram here. I have copied it. Now imagine a cylindrical surface like this. Just think of a cylindrical surface like this. This cylindrical surface is touching this surface ABCD. ये जो ABCD plane surface है, ये line charge है. Line charge is along the axis of the cylinder. This line charge is along the axis of the cylinder. Imagine a cylinder that just touches this surface, right? Which means radius of the cylinder. This is the axis of the cylinder. So radius of the cylinder is nothing but root 3 by 2a. If you can imagine that. This is the axis of the cylinder. There is a cylinder which is just touching through this surface. So radius of this cylinder is nothing but root 3 by 2a. Just imagine a cylinder like this. Now all the electric field lines that are starting or that are originating from this line charge, this is a positively charged line charge, let us say. So all field lines that originate from this line charge, they are going to pass through this cylindrical surface. Actually the field lines will be radial, as all of you must be knowing. If I could draw some of them, these are the field lines. Field lines are all radial due to this cylindrical line charge. So this is how the field lines will look like. This is a cylinder, imagine. Rather, this is a cylinder, this is a cylinder, and this is the line charge along the axis. So all field lines due to this infinitely long line charge will be actually radial. Radial means they will be perpendicular onto the surface of the cylinder. I have just shown the field lines here. Similar field lines are here also, throughout the length, everywhere. Radial field lines are there, right? Now you all know, using Gauss law, that what will be flux through this cylindrical, curved cylindrical surface. It will be equal to Q by epsilon naught, where Q is the charge enclosed inside the surface. If you consider a cylinder of certain length, let us say L, or any other length B, if you consider a cylinder of length B, then the charge enclosed inside that cylinder will be lambda into B. So Q by epsilon naught will be flux through the curved cylindrical surface. Why I am saying curved cylindrical surface? Because actually Gauss law is applicable only for closed surfaces. We cannot apply Gauss law for a surface like this.
we have to consider these lids also, the caps of the cylinder. The cylinder must be a closed surface, but in this particular case, there will be no flux through the circular caps. Can you see that? There will be no flux through this circular surface. All field lines are parallel to this surface. Field lines always are parallel to this particular surface, but all field lines penetrate perpendicularly through this curved surface of the cylinder. So through the curved surface there will be flux, but through the flat surfaces there won't be any flux. But if you consider the whole cylinder as a closed surface, the total flux through the cylinder will be Q by epsilon naught, where Q is the charge present inside the cylinder, which is length of the cylinder, B, let us say, so B into lambda. So that will be the flux through the whole cylinder. Now we have to understand that what amount of flux will pass through this rectangular surface. What amount of flux will pass through this rectangular surface? अभी भी जब भी आपको लगे, आप बच्चों को जब भी ऐसा लगे कि हमें रुक जाना चाहिए, हमें खुद से ट्राई करना चाहिए, तुरंत रुक जाइएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा. देखिए, ये ड्राइंग जरा इमेजिन कीजिए आप. फील्ड लाइन्स ही हैं. फील्ड लाइन्स मैंने हटा दी थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी. फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही हैं. एक लाल वाली फील्ड लाइन है, ये भी लाल वाली फील्ड लाइन है, एक फील्ड लाइन ऐसी भी है, एक फील्ड लाइन ऐसी भी है, एक फील्ड लाइन ऐसी भी है. तो ये जो फील्ड लाइन्स हैं ये वाली, ये आप क्या ध्यान से देख सकते हैं कि इस रेक्टेंगुलर सरफेस के थ्रू पास नहीं होंगी. वही सारी फील्ड लाइन इस रेक्टेंगुलर सरफेस के अंदर से पास होंगी जो ऐसी कुछ जा रही है. ये जो डार्क दो रेड लाइंस हैं, इन लाइंस के बीच में जो फील्ड लाइंस है वही इस रेक्टेंगुलर सरफेस से पास होंगी. हाँ, यहाँ हर जगह ऐसी फील्ड लाइंस होंगी और वही सभी फील्ड लाइंस इस रेक्टेंगुलर सरफेस के अंदर से पास होंगी. इस चीज को इमेजिन करना ही इस क्वेश्चन में सबसे डिफिकल्ट है. इसको 2 डायमेंशनल डायग्राम में कन्वर्ट कर देता हूं, आप आसानी से समझ पाएंगे. सपोज इस पूरे डायग्राम को हम इधर से देख रहे हैं, ठीक है, हम इधर से देख रहे हैं. मुझे एक लाइन BC दिखाई दे रही है, मैं इस लाइन BC को ड्रॉ कर देता हूं. ये रेक्टेंगुलर सरफेस कैसा है, अंदर की तरफ जाता हुआ, ऐसा रेक्टेंगुलर सरफेस. ये रेक्टेंगुलर सरफेस है, इसकी BC साइड हमें दिखाई दे रही है. इस सरफेस के BC के ठीक बीच वाले इस पॉइंट का नाम बातचीत में आसानी के लिए M रख दे रहा हूं. ये M के ठीक ऊपर ऐसे लाइन चार्ज जा रहा है. मैं इधर से देख रहा हूं तो लाइन चार्ज अंदर की तरफ या बाहर की तरफ आता हुआ दिख रहा है. उसको मैं यहां पे ऐसे दिखा दे रहा हूं, प्लस, मतलब लाइन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज वाला लाइन चार्ज ऐसे है और ये अंदर की तरफ है ऐसे. ठीक है, ये एक्चुअली ये प्लस जो मैंने बनाया ये वाला पॉइंट हो गया. अब यहां से B और C को मैंने जोड़ दिया, ये B और C को मैंने जोड़ दिया. ये बिल्कुल ये ट्रायंगल बन गया. देखिए ध्यान से, ये ट्रायंगल बन गया. अब इस लाइन चार्ज से जो फील्ड लाइंस निकल रही हैं, फील्ड लाइंस ऐसे भी जा रही हैं, 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 ऐसे भी जा रही हैं. ये भी फील्ड लाइन है, ये भी फील्ड लाइन है, ये भी फील्ड लाइन है. इस लाइन चार्ज से जितने भी फील्ड लाइंस एमिट हो रहे हैं उनमें वो फील्ड लाइन जो इस रीजन के अंदर है, इस एंगल के अंदर है, वही सारी इस सरफेस के थ्रू पास होंगी. तो बच्चों इमेजिन करना, जरा ठीक से इमेजिन करना. ये एक्चुअली सॉलिड एंगल जैसी कोई चीज यहां सोचने की जरूरत नहीं है. लाइन चार्ज ऐसे लॉन्ग लाइन चार्ज है और इस लाइन पे यहां पे भी फील्ड लाइंस बिल्कुल इस प्लेन में, मेरे हाथ के प्लेन में, इस हाथ के प्लेन में सब के सब फील्ड लाइंस जो हैं वो ऐसे रेडियल है. और यहाँ पे भी एक सरफेस इमेजिन करोगे तो फील्ड लाइन सब के सब ऐसे रेडियल हैं. तो हमें सिर्फ ये सोचना है कि एंगल कितना बड़ा है. इसके लिए डेटा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए ये जो हाइट है ये √3/2a है, ये √3/2a है. और ध्यान से देखेंगे तो ये वाला a/2 है, बिकॉज दिस होल लेंथ इज a/2. So if I call this angle as theta, then tan of theta will be this length by this length 1/√3, which means theta is 30 degree, which means this whole angle is 60 degree. This angle is 60 degree. Can you see that? So if this whole thing is 360 degree, so all field lines which are originating from this line charge, they get evenly spread on a circular cross section of 360 degree angle, isn't it? And out of those,
द लाइन्स विच फॉल इनसाइड दिस 60 डिग्री एंगल दे विल पास थ्रू दिस सरफेस। इस सरफेस से वही पास होंगे जो इस 60 डिग्री एंगल के अंदर से लाइन्स निकल रही हैं। फिर से देखिए लाइन्स यहाँ से ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं। तो इस सरफेस से तो वही इंटरसेक्ट करेंगी जो इस 60 डिग्री के अंदर पे लाइन्स होंगी। तो 360 डिग्री पे अगर n लाइन्स है तो 60 डिग्री पे कितनी हुई, 1/6 ऑफ दैट। इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ कि इस सिलेंडर से जितनी भी लाइन्स निकलेंगी, अगर सिलेंडर की लेंथ को हम जस्ट इसके बराबर ले लें अब, हाँ किसके बराबर, L के इक्वल, इस विड्थ के बराबर सिलेंडर अगर हम इमेजिन करें, तो उस सिलेंडर से जितनी भी फील्ड लाइन्स पास हो रही हैं उसकी 1/6 इस सरफेस से पास होंगी, 1/6। तो उस सिलेंडर के थ्रू जो फ्लक्स है, अगर सिलेंडर की ये वाली लेंथ हम L ले लें, तो सिलेंडर के थ्रू जो फ्लक्स है उसकी 1/6 फ्लक्स होगी मेरे उस फ्लैट सरफेस के थ्रू। तो पूरे सिलेंडर के थ्रू फ्लक्स कितना है, आंसर है, अगर L लेंथ का सिलेंडर लेंगे, L लेंथ की लाइन उसके अंदर है, तो टोटल चार्ज इतना है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ है, ये पूरे सिलेंडर के थ्रू फ्लक्स है, इसका 1/6 यही हमारे फ्लैट सरफेस के थ्रू फ्लक्स है, लैम्डा L बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम पीछे जाके देखें तो क्वेश्चन में पूछा गया है द फ्लक्स इज लैम्डा L बाई n एप्सिलॉन नॉट, तो n की वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली n इज इक्वल टू 6। जो दूसरा मेथड मान लीजिए हमें ये नहीं समझ में आया एग्जाम हॉल के अंदर, तो नॉर्मल जो सोच हो सकती है बहुत सारे बच्चों की यहाँ पे कि हम इंटीग्रेशन करके किसी सरफेस के थ्रू फ्लक्स लिख दें, वो अप्रोच भी चलेगा, आप वो भी कर सकते थे कुछ ऐसा। फिर से समझिएगा, ये जो सरफेस है ये BC दिखा रहा हूँ, इसे BC, ये BC, हम इस सरफेस BC में ऐसे पतले पतले स्ट्रिप्स इमेजिन करें ऐसे, और हर स्ट्रिप के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स लिख के हमें ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमें इस पूरे सरफेस के थ्रू फ्लक्स पता चल पाएगा। तो बच्चों ये कैसे किया जा सकता है जरा सोचते हैं। मान लो, फिर से समझना मेरी बात को, डायग्राम आसान बने इसलिए मैं इधर से देख रहा हूं, BC को फिर से यहां पे दिखा देता हूं। BC मान लो ऐसा है, बिल्कुल इसके मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट का नाम M रख देता हूं, मिड पॉइंट से √3/2 है हाइट पे, ये लाइन चार्ज है, ऐसा है लाइन चार्ज, मैं इधर से देख रहा हूं ड्राइंग को, राइट। इस लाइन चार्ज की वजह से इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स लिखना है। सरफेस कैसा है, ये BC है, BC जिसकी लेंथ है A और L डेप्थ है उसकी अंदर की तरफ, हम इधर से देख रहे हैं, BC L डेप्थ है, इसके ऊपर लाइन चार्ज ऐसे जा रही है। तो मैं जब ऐसे देखता हूं तो ये लाइन चार्ज का प्लस चार्ज दिख रहा है, √3/2 है हाइट पे, ये BC है और L डेप्थ की सरफेस है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। अब अगर हम इस सरफेस के थ्रू फील्ड का फ्लक्स लिखना चाहते हैं तो हमें ऐसे प्रोसीड करना चाहिए। मान लिया पूरे इंटीग्रेशन को हम एक्चुअली x के टर्म्स में या इस थीटा के टर्म्स में सेटअप कर सकते हैं, थीटा के टर्म्स में ज़्यादा आसान पड़ेगा शायद, समझिएगा मेरी बात को। इस फिक्स पॉइंट M से x डिस्टेंस पे ये जगह लीजिए, यहाँ पे dx विड्थ का एक स्ट्रिप इमेजिन कीजिए, बहुत ही छोटा dx, आपको साफ दिखाई पड़े इसलिए इतना बड़ा बनाया। ये जो स्ट्रिप है इसकी विड्थ को हम इस एंगल के टर्म्स में भी कह सकते हैं कि इसकी एंगुलर विड्थ है d थीटा। कैसी स्ट्रिप है फिर से समझ लेते हैं एक बार। ये लाइन चार्ज है, ठीक है, ये BC है, ये जो लाइन चार्ज है यहाँ से ये लाइन चार्ज का ये टिप दिख रहा है आपको, ये सर्कल लाइन का क्रॉस सेक्शन है लाइन चार्ज का, मान लीजिए यहाँ से एक सर्टेन एंगल थीटा पे, इस वर्टिकल से थीटा एंगल पे, यहाँ पे हम dx विड्थ की ऐसी स्ट्रिप ले रहे हैं। आई होप कि तुम समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये जो dx विड्थ की स्ट्रिप है इसके थ्रू फ्लक्स लिखने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज ध्यान दीजिए, लाइन चार्ज इनफाइनाइट लेंथ का है, इसकी वजह से किसी भी लोकेशन पे, यहां जैसे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियल ही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है वो तो हम सभी जानते हैं, λ/2πε0r, जहां r ये वाली लेंथ है, ये ब्लैक लाइन की लेंथ है कि नहीं। इनफाइनाइट लेंथ के लाइन चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल λ/2πε0r होता है। तो भाई ये dx बहुत ही छोटा सा स्ट्रिप है, बहुत पतला, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, आंसर है λ/2πε0r।
तो ये जो सरफेस मैं दिखा रहा हूँ, स्ट्रिप दिखा रहा हूँ, इस स्ट्रिप के थ्रू फ्लक्स क्या होगा? आंसर है ये जो स्ट्रिप है, ऐसा इमेजिन करो बच्चों थोड़ा, ये dx विड्थ की जो स्ट्रिप है, यहाँ हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लाइन चार्ज से रेडियल बिल्कुल इस डायरेक्शन में ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हर जगह सेम है इस पूरे स्ट्रिप पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, तो ये जो स्ट्रिप ले रहे हैं इसका एरिया वेक्टर तो वर्टिकल होगा। ध्यान से देखिए, ये जो एरिया वेक्टर होगा, ये नहीं दिखा रहा हूं यहाँ पे आप, अच्छा चलो दिखा देता हूं, ये एरिया वेक्टर है dA ऐसे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, यही एंगल है थीटा। ये पैरेलल है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है थीटा। तो जो उस स्ट्रिप के थ्रू छोटा सा फ्लक्स होगा, वो फ्लक्स कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप विच इज इक्वल टू L इंटू dx ये वाली विड्थ और L ये वाली विड्थ, dx इंटू L, और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल उसका कॉस। अब इस इंटीग्रेशन को किसी एक सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में लिखना होगा, तब तो इंटीग्रेशन करेंगे हम इस डायग्राम में अगर इस चीज को दिखाना चाहें तो मैं कह रहा हूं कि ऐसी हमने एक स्ट्रिप ली है, ऐसी, यहां से x डिस्टेंस पे ये dx विड्थ की स्ट्रिप है, ये dx है, ये डिस्टेंस x है, ऐसा। ठीक है, अगर इस लाइन चार्ज से दिखाऊं तो इस लाइन चार्ज से ये वाली लाइन मैंने बनाई, ये पॉइंट M है, और यहां से ऐसे थीटा एंगल पे ये स्ट्रिप है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो ये फ्लक्स हो गया उस पतले से स्ट्रिप के थ्रू, पर इसको एक सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस करना होगा। लेट अस से कि हम वेरिएबल जो लेंगे वो थीटा है, तो x को भी dx को भी थीटा के टर्म्स में लिखना होगा, d थीटा के टर्म्स में, या r भी नहीं चलेगा। हाँ, ये गिवन फिक्स डिस्टेंस है, तो आसानी से आप इस ट्रायंगल को देख के समझ सकते हैं, दिस अपॉन r इज cos थीटा, देयरफॉर r इज √3/2a डिवाइडेड बाय cos थीटा विच मींस sec थीटा। ये r की जगह पे आप लिख सकते हैं, आप x की जगह पे लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, x बाई दिस इज tan थीटा, कहीं अगर x है तो उसकी जगह पे आप ये लिख सकते हैं। और x और dx और d थीटा में क्या रिलेशन है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। dx बाई डी थीटा इज √3/2a sec स्क्वायर थीटा, देयरफॉर dx इज √3/2a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। देखिए, dx और d थीटा में रिलेशन को आपको मन में ऐसे बोलना चाहिए कि जब ये एंगल थीटा है तो x की वैल्यू है √3/2a tan थीटा। अब अगर हम थीटा को d थीटा बदलेंगे, थीटा में चेंज किया d थीटा का, तो बाय व्हाट अमाउंट x विल चेंज? इट विल चेंज बाय dx। थीटा में चेंज d थीटा का हुआ तो x कितना बदला, ये जानने के लिए x और थीटा के रिलेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये dx बाई डी थीटा लिखा, d थीटा को इधर कर दिया, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन क्या बता रहा है मुझे? ये एक्सप्रेशन कह रहा है कि इफ x इज रिलेटेड टू थीटा थ्रू दिस इक्वेशन, then if you change a small change in theta, if you make a small change in theta by d theta, if you change theta by d theta, then corresponding change in value of x is given by this. x की वैल्यू में बदलाव जो होगा जब थीटा को तुम थोड़ा सा बदलते हो, वो इस इक्वेशन से दिया जाता है। अब आपके पास सभी चीजें हैं जिसको आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। देखो, ये लैम्डा, ये l, ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब तो फिक्स नंबर है, इनको ऐसे लिख देता हूं, ये cos थीटा, और ये dx की जगह पे ये लिखना होगा। क्या लिखोगे तुम? √3/2a sec स्क्वायर थीटा d थीटा इंटू cos थीटा, ये cos थीटा है। अब बेटा जो यहां r है नीचे में, उस r की जगह पे क्या लिखोगे तुम? √3/2a इंटू sec थीटा। देखिए, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब यहां ये sec थीटा कैंसिल हो गया, sec थीटा इंटू cos थीटा, ये भी 1 हो गया। तो बचा क्या? क्या बचा आपके पास? ये √3/2a, √3/2a भी कैंसिल हो गया, तो लैम्डा l/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा l/2 पाई एप्सिलॉन नॉट
ये कैंसिल, सेक सेक सब, सिर्फ डी थीटा बचा। यही आपका डी फाई। ठीक, अब टोटल फ्लक्स कैसे निकलेगा बच्चा पार्टी? टोटल फ्लक्स निकालने के लिए मुझे यहां से लेकर यहां तक जितने स्ट्रिप है सभी में फ्लक्स को जोड़ना पड़ेगा, और उसको डबल कर दूंगा तो इधर वाले भी इंक्लूड हो जाएंगे। ऐसा कर लेते हैं। तो थीटा को मैं 0 से लेके यहां तक बदलूंगा, यहां तक। यहां कितना था? अभी थोड़ी देर पहले कहीं कैलकुलेट किया था मैंने कि ये एंगल 30 डिग्री था। ठीक है, तो जो इंटीग्रेशन मैं करने जा रहा हूं, थीटा चेंजिंग फ्रॉम 0 to 30, मतलब यहां से यहां पहुंच गए, उसको डबल कर देंगे तो इधर भी इंक्लूड हो जाएगा। इसलिए जो टोटल फ्लक्स होगा, डबल कर देता हूं, लैम्डा एल 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा 0 to पाई बाई 6, 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6। तो ये बन गया हमारा लैम्डा एल 6 एप्सिलॉन नॉट, पाई बाई 6, पाई कैंसल्स, 2 कैंसल, 6, यस। सो दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, प्रोवाइडेड कि आप सिचुएशन को इमेजिन कर पाएं और इस तरह का इंटीग्रेशन आपने कभी तो लाइफ में किया। तो इस तरह का जो इंटीग्रेशन है, जैसा इंटीग्रेशन यहां पे सेटअप किया गया, इस तरह का इंटीग्रेशन प्रिसाइजली आपने दो में से किसी एक जगह पे किया होगा। मैं आपको याद दिला देता हूं। या तो आपने ऐसे सवाल बनाए होंगे कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है, हम गॉस लॉ नहीं जानते, कूलम्स लॉ यूज करके यहां पे ऐसी सिचुएशन में गॉस लॉ जानते भी हैं तो क्या हो गया, मान लो फाइनाइट लेंथ की लाइन चार्ज है, इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं लेते हैं, फाइनाइट लेंथ की लाइन चार्ज है, ये लाइन चार्ज है, इसकी वजह से यहां फील्ड निकालो। या मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन में आपने पढ़ा होगा कि एक करंट कैरिंग वायर है एल लेंथ की, यहां से यहां तक, इससे सर्टेन डिस्टेंस डी पे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, ये एंगल अल्फा बीटा दिए हुए, फिक्स लेंथ की लाइन। तो इस केस में भी इंटीग्रेशन मोटा मोटी कुछ इसी तरह से सेटअप होता है। तो आपने अगर ये रूटीन क्वेश्चन किए हुए हैं तो आपको ये इंटीग्रेशन अटपटा नहीं लगेगा IIT के एग्जाम हॉल में। हाँ, थोड़ा इमेजिनेशन मुश्किल हो सकता है इस क्वेश्चन में, नो डाउट अबाउट इट।